5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे दोनों वैल्यू जो दी है एडिशन डिफाइन करनी है, इरेशनल प्लस इरेशनल इज अ इरेशनल वैल्यू हमें डिफाइन करना है। सो ऐसी केसेस में आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें कंसीडर करना है किसे, और इरेशनल में रैशनल में कंसीडर करके कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करनी है, प्रीवियस एग्जांपल में जैसे फॉर्म किया है। बट यहाँ पे दोनों इरेशनल, इसलिए आप इसके दो सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, इसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे केस 1 एंड केस 2 में सॉल्यूशन डिफाइन करूंगा, और इस केस 1 एंड केस 2 में से कोई भी एक केस आप आपके सॉल्यूशंस के लिए यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। सो फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर assume that root 5 plus root 3 is a rational number such that root 5 plus root 3 is equal to a by b, where अब यहाँ पे केस 1 डिफाइन करेंगे हम। केस फर्स्ट में हम कंसीडर करेंगे कि रूट 5 को सिंगल कंसीडर करते हैं, रूट 3 को ट्रांसपोज करेंगे, एंड केस 2 में रूट 3 को वन साइड में कंसीडर करेंगे एंड रूट 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे। सो हियर रूट 5 is equal to a by b minus root 3, and we know that identity we have to take the square, take square on both side, we get root 5 square is 5. Here I can take direct steps, and when we take a minus b bracket square, we know that, remember remarks, so a minus b bracket square identity define कर सकते हैं a square plus b square minus 2ab, ये वाले आइडेंटिटी आप यूज करोगे। सो a by b माइनस रूट 3 के लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। सो a by b ब्रैकेट a by b स्क्वायर मींस a स्क्वायर by b स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर को हम डिफाइन करेंगे एज 3 ओनली, एंड माइनस 2 into a की वैल्यू a by b एंड b की वैल्यू रूट 3 है, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हमने डिफाइन किया है। Now remaining values we have to transpose, take to one side. So this minus 2a by b into root 3 value, negative value को हम positive एक side में लेते हैं, so it becomes positive. So I can write 2a by b into root 3, yes, and remaining value we have to shift to the another side. So this plus 5 shifted to another side, it becomes minus 5. Therefore a square by b square plus 3 as it is, and this plus is shifted to another side, minus 5 becomes. So this implies that in next step we can define 2a by b into root 3 is equal to, now what we can define for this one, a square plus 3 minus 5, it becomes minus 2, and when we do the cross multiplication, a square minus 2b square divided by b square. Now only one last step remains, this 2a by b, this fraction is shifted to another side, so we have to write the reciprocal of this one to that side. So root 3 is equal to a square minus 2b square divided by b square into 2a by b can be written as b by 2a. So b and b square will get cancelled. Here we get root 3 is equal to a square minus 2b square divided by 2ab. Yes, this is your final answer. This is irrational is equal to रैशनल आया है, एंड दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। एंड केस 2 में भी हम डिफाइन करेंगे, केस 2 कहती है, सो यहाँ पे हम केस 2 में डिफाइन करेंगे केस 2। सो केस 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 5 हमने वन साइड में रखा था, अब यहाँ पे रूट 3 वन साइड में रखेंगे। रूट 3 इज इक्वल टू a by b, दिस प्लस रूट 5 शिफ्टेड ऑन द साइड, इट बिकम्स माइनस रूट 5। अगेन वी हैव टू टेक स्क्वायर on both sides, so we get root 3 square is 3, it is equal to a minus b bracket square identity you have to use, a square means a square by b square, then plus b square means root 5 का square, यहाँ पे हम 5 डिफाइन करेंगे, माइनस 2ab के लिए 2 into a by b into root 5, आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में आप उसे मर्ज कर सकते हो। And next step, अब now negative term we have to take one side, so I can write 2a by b into root 5. This negative value is shifted to left side, therefore negative becomes positive. 2a by b into root 5, it is equal to a square by b square plus 5 minus 3. This plus 3 shifted to another side, it becomes minus 3. So in the next step, we can say that 2a by b is into root 5 is equal to 5 minus root 3 is 2, and when we do the cross multiplication, a square plus
2b square divided by b square, and this fractional value, yes, 2a by b shifted to another side, so it becomes the reciprocal there. So a square plus 2b square divided by b square multiplied by, अब यहाँ पे न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगा एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी. दिस इज देयरफॉर 2a by b becomes as b by 2a. सो b एंड यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक b भी कैंसिल हो जाएंगे. सो इट बिकम्स रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab. आंसर में सिमिलरिटी थोड़ी बहुत दिखेगी, कहीं पे तो साइन की और यहाँ पे एक आधे वैल्यू की चेंजेस दिखेंगे हमें. सो जैसे हमें मालूम है कि रूट 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एंड रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab के फॉर्म में हमें सॉल्यूशन मिलेंगे. इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन डिफाइन करो एंड देन यू कैन डिफाइन, हेंस वी गेट कॉन्ट्रडिक्शन. यहाँ पे आप इसके बाद लिखोगे दोनों में से कोई भी एक केस डिफाइन करो जहां तक रूट 5 इज इक्वल टू एंड रूट 3 इज इक्वल टू, उसके बाद एक फाइनल आंसर इस सॉल्यूशन का कंक्लूजन लिखना है आपको. हेंस वी गेट कॉन्ट्रडिक्शन, hence we get contradiction. Therefore our assumption is wrong. This implies that root 3 plus root 5 is an irrational number. Hence we get the proof. So ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा याद रखना कि आपको या तो कोई भी एक केस, इन दोनों में से कोई तो एक अल्टरनेटिव चॉइस यूज करना पड़ेगा. रूट 3 इज इक्वल टू वैल्यू एंड रूट 5 इज इक्वल टू वैल्यू. अगर आप दोनों पे वैल्यूज डिफाइन करते हो फिर भी आपका सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा, आपको कंप्लीट मार्क मिलेंगे. सो बेटर सॉल्यूशन है और टाइम सेविंग के लिए आप इसमें से कोई भी एक केस यूज करके इसे इरेशनल प्रूव कर सकते हो.